Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے فلاسفی آف دا کانسٹیٹیوشن، اور یہ سیوکس کا ٹاپک ہے. کلاس ہمارا 9th ہے اور آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے 3/6/2020. تو فلاسفی پہلے سمجھیں گے. فلاسفی کس کو کہتے ہیں؟ فلاسفی کہتے ہیں بلیف کو، کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کن چیزوں میں بلیف رکھتا ہے، کن چیزوں میں یقین رکھتا ہے، کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. جو یہ بلیف ہے، جو یہ ویلیوز ہیں، یہ کس میں ایمبوڈیڈ ہے، کس میں ہم نے رکھے ہیں، کس میں ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں. ویلیوز آر ایمبوڈیڈ ان دا پریمبل. یہ پریمبل میں ہے، لیکن پریمبل کیا ہے یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے پچھلے ٹاپک میں. آج میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں. پریمبل انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ آف بیسک ویلیوز آف کانسٹیٹیوشن. It contains the philosophy on which the whole constitution is based. یہ پہلے ہی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ٹاپک میں. تو آج ہم سیدھے پہلے ہم پریمبل میں دیکھیں گے کون سے بلیفز ہیں، کیا فلاسفی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی. جب آپ اپنی بک کھول کے دیکھو گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو پہلا ہے وہ ہے، پہلی جو فلاسفی، پہلا جو ویلیو ہے وہ ہے وی دا پیپل آف انڈیا. وی دا پیپل آف انڈیا پہلا ہے. دوسرا ہے سوشلسٹ، تیسرا ہے سیکولر، چوتھا ہے ڈیموکریٹک، پانچواں ہے جسٹس، اور جو چھٹا ہے وہ ہے ریپبلک، اور ساتواں جو ہے وہ ہے لبرٹی، آٹھواں ہے ایکولٹی، اور نواں جو ہے وہ ہے فریٹرنیٹی. تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی فلاسفی ہے، بلیف ہے، ان چیزوں پہ بلیف ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ان چیزوں میں بلیف رکھتا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، جو یہ وی دا پیپل آف انڈیا، یہ کیا ہے وی دا پیپل آف انڈیا. اس کا مطلب ہے وی دا پیپل آف انڈیا، اٹ مینز دیٹ وی ہیو پریپیئرڈ دا کانسٹیٹیوشن، دیٹ وی ہیو میڈ دا کانسٹیٹیوشن. And it want to say that our constitution is created, crafted, or made by the people of India, but not by any monarch or dictator. شاباش. وی دا پیپل آف انڈیا، اس کا ہمیں یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے وی دا پیپل آف انڈیا، یہ ہمارا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈکٹیٹر یا کسی منارک نے نہیں بنایا. یا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ اوپر سے نہیں بن کے آیا ہے، بلکہ یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے، اور اس کے مالک ہم خود ہیں. اسی لیے ہم بولتے ہیں our constitution is created, crafted or made by the people of India, but not by any monarch. کہ کسی ڈکٹیٹر یا منارک نے نہیں بنایا ہے. دوسری خاصیت اور دوسری فلاسفی، دوسرا بلیف جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے، یقین جو ہے وہ ہے ساورن، کہ انڈیا از اے ساورن کنٹری. آپ دیکھیں گے ساورن کس کو بولتے ہیں. ساورن کنٹری از a country which made its internal as well as external decisions on its own. شاباش بیٹا. Sovereign. A sovereign country is a country which made its internal as well as external decisions on its own. ساورن کنٹری اس کنٹری کو کہا جاتا ہے، اس کنٹری کو کہہ سکتے ہیں ہم جو خود مختار ہو اپنے اندرونی اور بیرونی فیصلے کرنے میں. یعنی کہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پریشر میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کنٹری کسی دوسرے کا مدد لیتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیجر میں، اس لیے اس کنٹری کو ہم کبھی بھی ساورن کنٹری نہیں کہہ سکتے ہیں. ہماری کنٹری جو ہے، ہماری کنٹری کے فیصلے ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا پرائم منسٹر لیتا ہے.
जो प्रेसिडेंट है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट और जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आ गया, ये क्लियर हो गया कि सॉवरन क्या है। ये जो सॉवरन ये एक फिलॉसफी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये हमें क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट जो था वो था सोशलिस्ट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट जब मैंने आपको रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया था, सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड द सोशलिज्म इन यूरोप, उसमें मैंने आपको बोला था सोशलिज्म किस चीज को कहते हैं, किस सिस्टम को कहते हैं। ये जो सोशलिज्म आइडिया है ये किसने दिया था, ये भी मैंने आपको बोला था, ये कार्ल मार्कस ने दिया था 1867 में अपनी एक किताब दास कैपिटल में। अब खैर वो हमने पढ़ा है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ सोशलिस्ट क्या है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ हैं, ये इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जहां पे ऐसा सिस्टम हो जहां पे रिसोर्सेज या जहां पे दौलत मुल्क की बराबर तकसीम होती है सोसाइटी में, उस सोसाइटी को सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि जिनका ज्यादा इनकम है इनसे गवर्नमेंट टैक्स लेता है। ये टैक्स क्यों लेता है? ये इसीलिए लेता है कि सोसाइटी को बैलेंस किया जाए, जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब ना रहे। यह आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो राशन मिलती है, जो बीपीएल फैमिलीज एवाई फैमिलीज होती हैं, उन्हें राशन कम रेटों में मिलता है। क्यों, कैसे मिलता है? इसीलिए क्योंकि जो वो टैक्स लेते हैं वही उसमें एडजस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि सोसाइटी में बैलेंस लाई जाए, उसी को कहते हैं सोशलिस्ट। और चौथा जो है बेटा वो है सेक्युलर। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब हो गया जहां पे तमाम मजहब को एक्सेप्ट किया जाए, टॉलरेट किया जाए और इन्हें बराबर इज्जत दी जाए। हर कोई आजाद हो कि वो कोई भी मजहब अडॉप्ट कर सकता है, वो किसी भी मजहब की इबादत कर सकता है, उस पे किसी किस्म की रोक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सेक्युलरिज्म मीन्स दैट ईच एंड एवरी रिलीजन शुड बी रेस्पेक्टेड इक्वली एंड शुड बी टॉलरेबल। Each and every religion should be respected equally and should be tolerable। और ये बराबर यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। अगर ये चीजें हैं हमारी कंट्री में, यानी कि हर किसी को आजादी है, हर मजहब के लोगों को अपनी अपनी इबादत करने का मौका दिया जाता है, उनसे किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होती है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो कंट्री है ये सेक्युलर है। और पांचवा जो पॉइंट था बेटा वो था डेमोक्रेटिक, जो मैंने आपको पहले ही डेमोक्रेसी में क्लियर किया है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां पे तमाम लोगों को ये हक है कि वो अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और हर किसी को जिसमें क्वालिटी हो उसको चुना भी जा सकता है वो इलेक्शन प्रोसेस के जरिए। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां पे लोग आजाद हो अपनी हुकूमत चुनने के, कोई भी पावर के बलबूते पे वहां का हुक्मरान नहीं बन सकता। और छठा जो पॉइंट है बेटा वो है जस्टिस। जस्टिस और इक्वलिटी में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है। बेटा यहाँ दो चीजें हैं। जस्टिस मीन्स एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। ये इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने बराबर होने चाहिए सब, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट का बेटा हो, चाहे कोई मजदूर हो, गरीब हो, सबके लिए एक ही, अगर कोई जुर्म करे तो एक ही कानून सबके लिए लागू होना चाहिए और हक बराबर मिलना चाहिए। और सातवां पॉइंट जो था वो था लिबर्टी का। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री within the society from oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior or political views। ये लिबर्टी वो है कि किसी इंसान के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर किसी किस्म की नाजायज रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, इलीगल रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। उसको फ्रीडम कहते हैं जहां पे आदमी आजाद हो। यानी कि
एक भारत का एक सिटीजन, इसको आज़ादी होनी चाहिए, ये घूम सकता है कंट्री के किसी भी कोने में। इतना ही नहीं, ये अपना कल्चर जो है ये वहां पर भी अडॉप्ट कर सकता है, या जितने भी इसकी लाइफस्टाइल है ये उनके जरिए उन्हीं के तहत अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। इक्वलिटी मीन्स कि हर इंसान बराबर होना चाहिए, किसमें, सोशली, पॉलिटिकली, हर हिसाब से, फाइनेंशियली इक्वल होना चाहिए। इसको हर किस्म की मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, यानी कि इनकम के मामले में इसको रहने के लिए घर देना चाहिए, इसको रहने के लिए घर होना चाहिए, और बाकी चीजें जो है हर एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, हर फील्ड में इसको इक्वलिटी होनी चाहिए। सोसाइटी में कोई भी आदमी पैसों के बुनियाद पे या किसी कलर के बुनियाद पे बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोग बराबर होनी चाहिए। और आखिरी, और फर्टर्निटी जो है आखिरी, जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, इसका मतलब है ब्रदरहुड। किसी किस्म का भी आदमी हो, किसी मजहब का भी आदमी हो, किसी जात का भी आदमी हो, जो हमारी कंट्री में रहता है, वो और सब एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखे, ये फर्टर्निटी है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों पे बना है, यानी इसमें क्या क्या चीजें हैं, यही इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, जिसमें हमने बोला पहला था वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा था सॉवरेंटी, तीसरा था सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी। ये फिलॉसफी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारा मुल्क कैसा है और हमारे मुल्क में किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। इंशाल्लाह आप अगले वीडियो में कल मिलेंगे अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज।